First of all, I would like to see the all of faces. Can you turn on the video camera so I can see your beautiful and handsome faces, so I can get some energy to start this session. Have you all? Have you all turned on the face your video camera? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. okay, very good. Can anyone click the photo? Yes, sir. Click. Okay, good, very good. So let me share with you the course objective. At the end of this 1 hour training sessions, all the participants will be able to recognize your emotion triggers, what is the emotions, you will understand what is the emotions, and how to control your emotion in a different situation. This is going to be, it is going to be very beneficial for all of you. You will learn how to control your emotion in a different situations. Okay, so moving ahead, I would like to ask you, could you please put your hands together to start these sessions? Put your hands together to start your clap. Good, good, very good, very good. So I request you all raise your right hand. Raise your right hands. All of you raise your right hands. And turn toward the back side and tap on your shoulder. Okay. Say congratulations to yourself so that you have joined the sessions. Okay, very good. So my question is to all of you, what is the emotions? Emotions हम किसे कहें? What is the emotions? Anybody can answer? Emotion हम किसको कहें? Hello. Yes, Sanjana. Emotions हम किसको कहें? What is the emotions? सर इमोशंस ये एक फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं। Good, good. तो मतलब सैड फीलिंग होती है वो भी एक्सप्रेस होता है और हैप्पी फीलिंग भी एक्सप्रेस होती है। Good, very good. Yes, absolutely right. Yes, clap for her. Yes, Nishan, what do you think? What is emotion? Emotions क्या है? According to you. Emotions are like in any situation, what are the feelings, what we are going through, our emotion, like what we express, like we are happy or we are sad or we are angry, something. So that are emotions according to me. Yes, clap for him. Very good, Nishan. Very good. So we know that emotions are the strong feeling. It is a conscious and mental reaction to specified object or situation. जब हम कोई situation या कोई object देखते हैं तब क्या होता है, हमारे feelings निकल आती है, कुछ हमारी strong feelings निकल आती है. जब उसको reaction हमारा respond करते हैं, react करते हैं, उसे क्या कहते हैं? Emotions कहते हैं. मान लीजिए निशान को प्रमोशन मिल गया. निशान को क्या मिल गया? प्रमोशन मिल गया उसका कंपनी में. और उसके वजह से उन्होंने एक स्वीट का बॉक्स लिया और स्वीट का बॉक्स वो अपने आजू बाजू को लोगों को बांट रहा है. उन जब उस स्वीट का बॉक्स बच्चे देखते हैं और वो बच्चों में बांट रहा है तो बच्चों में कौन सी फीलिंग्स आएंगे? जब बच्चे वो स्वीट्स खाएंगे, स्वीट्स मिल रहा है उनको, तो कौन सी फीलिंग्स आएंगी उनको? Happiness, joy. Happy. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस है ना, हैप्पी करते हो और अपने बॉस को देते हो, बॉस को ऑफर करते हो. और लेकिन बॉस को डायबिटीज है. बॉस को क्या है? डायबिटीज है. और जैसे कि आपने बॉस को ऑफर किया तो बॉस बोलते ना ना, मुझे मत दो, यानी मैं नहीं खा सकता. फिर आप भी थोड़ा इंसिस्ट करते हो, सर थोड़ा लीजिए ना, थोड़ा लीजिए ना, मेरे लिए खाते स्वीट लाकर ना.
बिकॉज ही इज हैविंग द डायबिटीज, वो नहीं खा सकता, तो क्या फीलिंग्स है उसमें, क्या आएंगी फीलिंग्स? उनकी Sad. फीलिंग्स क्या होंगी? Sad. है ना, सैड सैड हो गया यार, मत 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 खिलाओ यार, नहीं क्या, यू यू एंजॉय योर हैप्पीनेस, है ना। और फिर वही स्वीट का डब्बा फिर आप लेके अपने कलीग्स के पास जाते हो, जिसको प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिला, जिसको प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिला, तो आप उसको ऑफर करते हो स्वीट, तो स्वीट तो ले लेता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स क्या होंगी? व्हाट विल बी हिज फीलिंग्स? Angry. एंग्री हो जाएगा, है Jealous, ना, not so happy. है ना, नॉट सो हैप्पी, है ना, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के इमोशंस क्रिएट होते हैं व्हेन वी गो इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में हम जब जाते हैं, हम जब अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि वो जैसे ही रिएक्शन, कोई भी इमोशंस आता है, उसको हमारा साइकोलॉजी और हमारी बॉडी पर उसके क्या होते हैं, उसके अलग अलग इम्पैक्ट दिखने लगते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right. So one more thing, in emotions, if you know the emotion, there are the different types of there are two types of emotions, positive emotions and negative emotions. Can anyone tell me what are the positive emotion? Positive emotions हम किसे कहें? दो टाइप्स के इमोशंस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हम पॉजिटिव इमोशंस किसे कहें? Positive emotions are happy, excited, energetic. हम्म, These are positive emotions. ओके, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। जब ये पॉजिटिव है, ये फीलिंग्स या इमोशन जनरेट होते हैं, तब हमें कैसे लगता है? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील व्हेन सच अ पॉजिटिव इमोशन जनरेट्स? क्या होता है? Most of the time, we feel energetic हम्म, when positive emotion हम्म, uh, come in our mind. हम्म, एनर्जेटिक होते हैं, सराउंडिंग में पूरा हैप्पीनेस का माहौल हो जाता है, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, करेक्ट। क्या क्या, ओके, इट्स ओके। जब निगेटिव इमोशंस जनरेट हो, व्हाट आर द नेगेटिव इमोशन? नेगेटिव इमोशंस क्या है? मानसी, Sadness, कैन यू टेल अस व्हाट आर द नेगेटिव इमोशंस? sadness, anger, ओके, वेरी गुड, यस निशान। सैडनेस, एंगर, Frustration. फ्रस्ट्रेशन आता है, Fear. फियर आता है, ओके, Rest. हम्म, और Depression. डिप्रेशन आता है। जब ये निगेटिव इमोशन जनरेट्स होते हैं तो क्या होता है अपने सराउंडिंग में, खुद के बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है, और खुद के इमोशंस, खुद खुद के साइकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट होता है, और अपने जो सराउंडिंग में क्या इम्पैक्ट होता है जब निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं? Uh, Fear Blood one pressure starting. changes. हम्म, क्या होता है? क्या होता है संजना? जब निगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं तो आजू बाजू में और अपने खुद पर क्या इम्पैक्ट होता है उसका? जब हम निगेटिव रहते हैं तब आजू बाजू में चीटिंग, हम्म, सराउंडिंग क्रिएट हो जाता है, और खुद हम फ्रस्ट्रेट फील करते हम्म, हैं और कुछ खाना होता है, और तो फिर हमारा गुस्सा करेक्ट, निकलते हैं। करेक्ट, वेरी गुड, यस। अभय, क्या होता है जब आपको अगर बहुत गुस्सा आया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? At that moment, uh, my body shake automatically, and यस, योर बॉडी विल स्टार्ट, yes, करेक्ट। जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जब फियर आता है, एंगर आती है, डिप्रेशन आते हैं, एंजाइटी आता है, सभी में अपनी धड़कनें तेज हो जाती है, होती है, अपनी yes, sir. धड़कनें क्या हो जाती है, तेज, हार्ट की धड़कनें जो होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, नर्वसनेस होता है, ये सब आते हैं, है ना। तो हमारे एज अ
पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए और हमारा पर्सनल लाइफ के पॉजिटिव इमोशंस अच्छे होते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस खतरनाक होते हैं. दीज आर वेरी डेंजरस फॉर अस. ओके, सो वी हैव टू कंट्रोल देयर इमोशंस. जब हम कहीं काम कर रहे हैं हमें कंट्रोल करना पड़ता है. अगर वो कंट्रोल न कर पाए तो वो खतरनाक, यानी बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन पे जा जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं. कई बार गुस्से में हम जॉब भी छोड़ देते हैं. कब गुस्सा आता, बॉस ने थोड़ा बोल दिया, हमें नहीं पसंद आया, तुरंत हम जॉब छोड़ देते हैं. फिर बाद में घर जाने के बाद इधर उधर भटकते, फिर बाद में जॉब नहीं मिलता, फिर रिग्रेट करते, यार थोड़ा सा तो वो गुस्सा हुई थी इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया. होता है ना. तो इस तरह से हमारे बहुत सारे हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं. हम देखेंगे, चलो एक एक्टिविटी करते. यस, मुझे पता है कि गर्ल्स आर वेरी गुड इन मेकिंग फेसेस. इमोशंस के जो अलग अलग फेसेस बनाने में वो गर्ल्स आर वेरी एक्टिव. सो इन दिस activity there will be the two teams, one girls teams and one will be the boys teams. Okay, second will be the boys team. So what will happen, the girls will make one by one the different faces and boys will recognize कि ये कौन सा इमोशंस उन्होंने एक्सप्रेस किया है. ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. ओके, आप पार्टिसिपेट करो एक्टिवली. ओके, पार्टिसिपेट, एंजॉय करोगे, यू विल एंजॉय दिस सेशन. ओके, अदरवाइज यू विल फील द बोरिंग. ओके, सो फर्स्ट I want to ask Sanjana, make any kind of face or any kind of, express any kind of feelings on your face, so other will recognize. जो boy recognize करेगा उसको फिर बाद में गिफ्ट मिलेगा. ओके, यस, स्टार्ट. Smile. ओके, क्या बोला संजना ने? क्या इमोशंस था, कोई बताएगा? कहाँ गए बॉयज, दिख नहीं रहे? वेर आर अदर? यस, प्रणव, क्या हुआ था? संजना ने कौन सा इमोशंस ये एक्सप्रेस किया? रहने दो, मैं संभाल लूंगी. मैं संभालूंगी. ओके, गुड. ओके, खुशी, अभी आपका टर्न है. आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, फेशियल एक्सप्रेशन देकर, और आदित्य उसको रिकॉग्नाइज करेगा. Sir, stress. स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेसफुल. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. Yes, now it's turn Shubhangi. Okay, show your emotions. And okay, who is another one? Okay, anyone can recognize these emotions. Shubhangi. Okay, क्या इनके इमोशंस, कौन बताएगा? Surprise. सरप्राइज और सरप्राइज. ओके, गुड. अभी तनुश्री will show something on her face or on her acting, through acting. Okay, so somebody will recognize. Tanushree, start. Okay, who will tell? तनुश्री, हो गया आपका एक्सप्रेस करना? हाँ, ओके. श्रद्धा, बोलो, बताओ क्या हुआ, तनुश्री ने क्या किया, क्या इमोशन था? सर तनुश्री सोच में है, सोच रही है, डीप डीप थॉट्स में चली गई. डीप थॉट्स. यस, ओके. अभी आदित्य एक्सप्रेस करेगा उसकी फीलिंग्स, और शुभांगी को उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या बताना चाहता है, यार क्या, कौन से मूड में है आदित्य. Sir, he is thinking. ओके, इज थिंकिंग, उस बहुत सोच रहा है, सोच में डूबा हुआ है. ओके,
गुड। और कौन ऐड करेगा? और बॉय, अभी बॉय को ऐड करना, बॉयज को ऐड करना है, बॉयज को ऐड करना। और दूसरा निशांत, वेर आर यू? Yes, sir. ओके ओके निशांत, यस यस प्रणव, ओके यस अमोद, अमोद, ओके अमोद, make such kinds any different types of faces or any expression or feelings. Okay, express your feelings. Okay, other will identify. Okay, Khushi, can you tell us what is his emotions? सर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मतलब सोच में पड़ गए हैं, एकदम सरकास्टिक। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। किसी को एंगर एक्सप्रेस करना, कैसे एंगर एक्सप्रेस करेंगे? यस प्रणव। नहीं, मैं तो बता दे रहा हूँ। ओके सॉरी, ओके वो तो आपको ये, ओके एनीवे, ओके ट्राई ट्राई, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर एंगर एंगर? ओके गुड। अभी कोई कोई फीलिंग्स बची है जो एक्सप्रेस करने की बाकी है? कोई फीलिंग्स? क्या है अमोद? सॉरी, अमोद ने किया है। कौन बताएगा? खुशी बताओ, अमोद ने क्या किया? अमोद ने, फिर से करो अमोद, अमोद फिर से। हम्म जीत जाते हैं, winning यस खुशी, attitude। ओके खुशी एक्सप्रेस कर रही। ओके वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, या यू डिड वेल, वेरी गुड। So let me tell you a story of angry man. Yes, what happened? There was a family and they were going to attend the marriage ceremony in the afternoon. Afternoon का समय था, okay, and they were going to attend the marriage ceremony. और रास्ते में जाते जाते वो अपने स्पीड में जा रही थी गाड़ी, और सडनली उसका टायर पंचर हो गया। क्या हो गया? वो कार का टायर पंचर। तो उसको, बंदे को बहुत गुस्सा आया, उसने वो गाड़ी रोकी। या मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? या मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या हुआ, उस जेंटलमैन ने अपनी गाड़ी रोकी। उस गाड़ी में उसकी वाइफ थी, उसका एक बेटा था 6 साल का, और वो खुद थे। और जब पता चला कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर उसने उसको रिप्लेस करने के लिए वो निकलना चालू कर दिया। उस समय में था वो वो उसने देखा कि वो लड़का, और उसके बाद में, हाँ, वो जो रिप्लेस होने के बाद में, जो उसने वो टायर फिक्स करने के बाद में, उसने अपना वो हाथ में जो स्पैनर था, उस स्पैनर से उसने वो बच्चे को बहुत मारा। और जैसे ही वो पीटने लगा, उस अपने एंगर में इतना खो चुका था कि उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बच्चे के उंगली से खून निकल रहा था। तो ब्लड निकल रहा था, और उसकी जो मम्मी थी उससे चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो आप? फिर उसको पता चला कि मैंने मेरे बच्चे की जो उंगली उसको डैमेज कर दिया। फिर वो लोग वो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एक पानी बोतल दीजिए। इमरजेंसी उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और फिर बाद में डॉक्टर को लगा, अगर वो रहता है वो ऐसा डैमेज, तो उसको गैंग्रिया हो सकता है। तो उसको पिताजी को बोला गया कि उसका एक उंगली उसकी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको बहुत तकलीफ जाएंगी इन फ्यूचर। तो फिर बोला हाँ कर लीजिए। उसका ऑपरेशन किया, उसकी उंगली एक निकालने पड़ी। और फिर बाद में 2 घंटे के बाद जब बच्चा होश में आया, तब उनको बुलाया गया उनको, कि आप फैमिली को, कि आप उनको मिल सकते हो। फिर वो फैमिली उनको मिलने गई, उसके उसके पिताजी, उसकी मम्मी। तो बच्चे ने पूछा, पापा, जब सुबह मैंने देखा तो आई हैव 10 फिंगर्स,
जब मैंने सुबह मेरे मेरे हैंड्स को देखा था, तो आई हैड आई हैड 10 फिंगर। मुझे कितने फिंगर्स थे मेरे हाथ को? 10 फिंगर्स थे। अभी मैं काउंट कर रहा हूँ तो मेरे 9 ही फिंगर्स है। तो मेरा वेयर इज माई 10th वन फिंगर्स, मेरा 10वां फिंगर्स कहाँ है? तो उसके पिताजी थे, उसके टीयर्स, वो आंसू निकल आए, वो रोने लगा और वो बाहर निकल गए। और फिर जाकर वो जो गाड़ी के पास गए, कार के पास, उसको किक मारने लगे। यार मैंने क्यों मारा वो बच्चे को? फिर वो बच्चा उस ग्लास पर, वो विंडो के ग्लास पर क्या लिखना चाहता था, उसकी जो कंडीशन थी उसके पिताजी की, इट वाज द डिफरेंट। वो यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने यार क्या गलती की। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की इस एंगर में आकर। तो क्या होता है इस स्टोरी में, वो जो एंग्री मैन रहता उसको, जो एंग्री मैन होता है, उसको इतना एंगर आता है, इसके एंगर आता है, वो उस खुद के एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको कंट्रोल नहीं करने के बावजूद की वजह से उसने बच्चे को उसकी एक उंगली गंवानी पड़ी है। तो क्या क्या फीलिंग्स आई थी इसमें? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट वाज द इमोशंस इन दैट स्टोरी, और उसके इम्पैक्ट क्या हुआ? Sir, anger, emotions. ये स्टोरी जो थी, उस स्टोरी में क्या हुआ, यानी कौन से इमोशंस जनरेट हुए और जो इमोशन की वजह से क्या Sir, हुआ? first is anger. हम्म हम्म क्या हुआ? regret emotion. ओके। रिग्रेट हुआ, रिग्रेट इमोशंस हुए, है ना? उसको एंगर, फिर उसको इमोशनल हो गया, टीयर्स ज्यादा आ रहे हैं ना? तो सबसे बड़ा जो इमोशंस था उनका, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो कौन सा था? एंगर, है ना? वो अपन खुद के एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे हम क्या कर रहे हैं। वो अपने एंगर से अपने आपा हो गया, और उसके वजह से उसने अपने बच्चे के उंगली डैमेज कर दिए, और उसका इम्पैक्ट वो अपनी जिंदगी भर के लिए उसने बच्चे ने अपनी उंगली खो दी। ओके, मूविंग अहेड। हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं। हम जब कहीं काम कर रहे होते हैं, घर में हो या ऑफिस में हो, हम कभी अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग जब सिचुएशन आती है, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं। तो हमारे कुछ इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं, हमारे जो इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं। तो कोई बता पाएगा कि क्या हमारे इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट क्या होते हैं और क्या होता है उसके उससे? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट आर द इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट्स, जिसके वजह से हमारे इमोशंस जनरेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन जनरेट्स होते हैं? यस शुभांगी। सर, जब हम कोई काम करते हैं और हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हमें स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस और सेंस होते, वही करेक्ट। काम हमने अगर पूरा किया तो हमें हैप्पी फील होता है। ओके ग्रेट, यस एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। और और तनुश्री, क्या होता है? क्या चीज है जो ट्रिगर करते हैं हमें इमोशंस को? क्या चीज है हमें गुस्सा दिलाती है? phobia of something. हम्म। अच्छा। प्रणव, क्या आपको कौन सी चीज ट्रिगर करती है? हम्म क्या होती है प्रणव? क्या चीज आपको ट्रिगर करती है इमोशंस? आपको गुस्सा आ जाता है या आप बहुत सैड हो जाते हो? क्या कोई चीज होती है? हम्म हम्म ओके, गुड गुड। गौरव, ओके गौरव, क्या होता है, कौन सी चीज आपको परेशान करती है, किसके वजह से आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, सैड हो जाते हो या बहुत खुश हो जाते हो? कौन सा ट्रिगर्स पॉइंट्स है आपके, इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट? प्रोजेक्ट करते थे हमको कुछ एरर वगैरह आता है, एरर सॉल्व किया तो हैप्पी फील होता है। अगर एरर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सैडनेस आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन जब एरर सॉल्व हो जाता है तो फिर फीलिंग अच्छी आती है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है, कुछ चीजें जैसे पास्ट ट्रॉमा, अगर अपने साथ कुछ चीज हुई है पास्ट में, अगर हमारे साथ कुछ चीज ऐसी हुई है पास्ट में जो बार बार उसकी जब याद आती है
तो हम गुस्सा हो जाते, स्ट्रेस में चले जाते। होता है ऐसा? बनाने के मतलब अभी होता है क्या तो रह गया तो रह गया है ना? परफेक्ट। है ना? जब भी जब भी कभी हमारे साथ हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस या पास्ट की ऐसी सिचुएशंस आ जाती है माइंड में, तब वो ट्रिगर करती है। और किसी ने अगर याद दिला दिया है कि तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, ओके, होते हस्बैंड वाइफ में वो ज्यादा झगड़े इस पर ही होते हैं, क्यों होते हैं? यार तुमने वो किया था, ये किया था, वो ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं उनके। अगर जैसे ही उस पर अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आ गया तो फट से वो रिएक्ट करना चालू हो जाता है ना? वैसे अगर आपकी कोई नेगेटिव मेमोरीज हो, अगर आपकी कोई नेगेटिव मेमोरीज हो, अगर वो याद आ जाती है, अगर वो याद आ जाती है, तो क्या होता कि हमारा इमोशंस, हमारा स्ट्रेस आ जाता, टेंशन में आ जाते, गुस्सा आ जाता, है ना? कुछ फियर फियर होते, फियर फोबिया, बहुत से लोगों को डर लगता है कहीं जाने का। इंटरव्यू का इंटरव्यू का फोबिया होता है, इंटरव्यू, है ना? इंटरव्यू जाने जाते हैं, कहीं अकेले जाते हैं, अगर कार चला रहे हैं, अगर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। असाइनमेंट से मैंने किया नहीं हमेशा की तरह। इसलिए आखिर के 3 दिन पड़े तो फोन किया। हेलो, आ जाओ बोले मला ओके क्या कर रहा था। could you please ट्रेनिंग turn सेशन off जैसे होता your है turn off your वही। mic? Hello sir, someone is speaking. मेरा फेवरेट टॉपिक एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है बट बच्चों को नहीं दे सकते हो। Hello, hello, करियर काउंसलिंग who आपके is ऐसे speaking? सेशंस नहीं इनवाइट करते हैं कॉलेज में। हेलो, who is speaking? टॉपिक कोई वो बात कर रहा टॉपिक पूछ रहे हैं आप कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रेस हेलो, मैनेजमेंट who is speaking? एडल्ट ट्रेनिंग इनोवेशन के ऊपर टॉपिक। Hello, someone is speaking, please turn off your mic, it is disturbing us. अपने कॉलेज में दे Okay, दूं क्या एक असाइनमेंट ही हो जाता है। हेलो। एक हाँ बार देखिए, तुम्हारा फिर बाद में हम मुड़ते स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऐसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कोई आते हैं हमारे लाइफ प्रिंसिपल में, का ऑर्डर पे होता होगा ना। हमारे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते, इस सिचुएशन से क्या होता है, ऐसी सिचुएशन तो आते वासुदेव हैं तो सर वो को फोन करो। ट्रिगर्स करते हैं, हमारी इमोशंस ट्रिगर्स करते हैं, है ना? देन रिलेशनशिप इश्यूज जो डे टू डे लाइफ में ये फौजी वाले होना है डे टू डे लाइफ में मेरा फिर एमबीए का है डे टू डे लाइफ में जो कोई भी कुछ। चलता बट एमबीए बेटर था। एक सेशन 1 घंटे का। हेलो, someone is speaking continuously. उम्मीद भी नहीं रहती है। Very good. So am I audible to all of you? Am I audible? Yes, very good. तो क्या होता है, कुछ ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जब आ जाती है तो हम वो ट्रिगर, हमारा स्ट्रेस निकल जाता है ना? कोई सिचुएशंस आती है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो उस हैंडल में हमारा इमोशंस निकल आते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कुछ रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, अगर उसमें कुछ इश्यू, घर में कुछ प्रॉब्लम चालू है तो उसमें हमारे गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लॉस ऑफ ग्रीफ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोई बंदा उसमें से बाहर निकल पाता है, कोई और डिप में चले जाते हैं, और कभी कभी हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके वजह से हमारे इमोशंस ट्रिगर्स होते हैं और हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब होता है, क्या होता है, इमोशंस आते हैं, इमोशंस अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है हमारे माइंड का। और उसको हमें क्या करना है, अभी बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है। तो उसको क्या करते हैं, इमोशंस मैनेजमेंट, हमें क्या करते हैं, जो बैलेंस करता है। कोई बताएगा व्हाट इज द इमोशंस मैनेजमेंट? आपको क्या लगता है, व्हाट इज इमोशंस मैनेजमेंट? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज इमोशंस मैनेजमेंट? यस, खुशी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इमोशंस मैनेजमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई एक ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है तो उस टाइम पे हमें उस सिचुएशन के बारे में शांति से बैठ कर सोचना चाहिए कि इसका क्या मतलब बोलने के पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले पे। देन सोचने के बाद फिर हमें जो भी वर्डिंग्स हमारे अंदर चल रहे हैं,
हमारे मन में चल रहे हैं, फिर उसको फिर से शांत होने के बाद, फिर से फॉर्मलाइज करने के बाद, फिर उसको सामने वाले को कन्वे करना चाहिए। Yes, yes, absolutely शांति से right. बैठ Yeah. हाँ, Correct, correct, absolutely. तो Thank you. इमोशंस मैनेजमेंट इज द एबिलिटी, हमारी एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज इमोशन को, रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना और उसको मैनेज करना, है ना। हमारी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है मैनेज करने की। इमोशन मैनेजमेंट मीन्स इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, अंडरस्टूड। तो हमें वो एबिलिटी डेवलप करना है। तो अगर हम अपना अगर इमोशन मैनेज कर पाते हैं प्रॉपरली, तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हम अपनी इमोशंस अगर मैनेज कर पाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो क्या होता, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। अगर हम अपनी इमोशंस अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में और या हमारे कौन से लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर हम मैनेज कर पाए तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा क्या बढ़ेगा, क्या हो पाए होगा, रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस होगा। हम अगर हमारा इमोशंस प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा, हमारे काम अच्छे होंगे। और क्या होगा उसके अलावा, और क्या हो सकते हैं अगर हम इमोशंस मैनेज कर पाए तो उसका बेनिफिट क्या है दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम करने की क्षमता, है ना, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। अगर हम हमारे इमोशंस मैनेज कर पाए, हम हमारा बैलेंस कर पाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन Yes. करेक्ट, देन रिलेशनशिप्स जो है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छी होगी। हमारे अगर घर में अगर प्रॉपर क्या बोलते हैं, हमारे सब लोग के साथ डीलिंग अच्छी है, हमारे बैलेंस करते हैं, हम किसी को रिएक्ट नहीं करते, गुस्से से बात नहीं करते, या हम हमारे ऑफिस में भी हमारा बिहेवियर अच्छा है, हमारे इमोशंस मैनेज करके हमारा बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर मैनेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होगे गुड। उसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, है ना। क्या होता है कि हमारा अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है तो हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, है ना। हाँ, हम कंट्रोल कर पाए हमारे इमोशंस को, और हम सभी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे है, हमारा बिहेवियर अच्छा है, तो हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे, है ना। अगर हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे, सब अच्छा है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा जो डिसीजन लेने का जो एक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो स्ट्रांग होंगी, मानते हो, है ना। अगर हम डिसीजन कभी कभी क्यों नहीं ले पाते, जब हमारे दिमाग में बहुत सारे इमोशन चालू है, बहुत सारे कचरा चालू है, कचरा बोले तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चालू है, तो हम डिसीजन ले पाएंगे क्या, हम डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, है ना। तो हम अगर बैलेंस इमोशंस है हमारे, तो हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। और हमारा जिसका बैलेंस इमोशंस है, बैलेंस और डिसीजन मेकर्स है, उसके हेल्थ इश्यूज नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी है, प्रोडक्टिविटी है, तो वो लीडरशिप में आगे बढ़ेगा, है ना। लीडर किसको बनाया जाता है, कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, लीडर किसको बनाया जाता है, अगर उसमें ये सब चीजें है, अगर वो इमोशंस को मैनेज कर पाता है, अपनी इमोशन और दूसरे के इमोशंस को भी समझता है, उसकी वो लीडरशिप में आ जाता है, वो लीडरशिप करता है, उसको टीम लीडर बनाया जाता है, उसको मैनेजर बनाया जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स है अगर हम अपना इमोशंस मैनेज करते हैं। और क्या क्या फायदा हो सकता है, और जब हम हमारे इमोशंस बैलेंस रखते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकते हैं इसके अलावा, प्रणव क्या हो सकता है अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो। सर स्ट्रेस भी रिलीफ। अच्छा, और ओके गुड। यस गौरव, क्या होता है जब हम अपना इमोशंस बैलेंस करते, मैनेज करते, कंट्रोल करते, तो क्या बेनिफिट मिलता है, गौरव। अपना काम में ओके। मन लगता है, हमारी हम्म हम्म प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम हम्म अच्छे से काम करके अपना वर्क में हम्म अपना ध्यान लगा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट।
करेक्ट करेक्ट। हाँ, संजना क्या होता है, हम अगर क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम इमोशंस हमारे कंट्रोल कर पाते हैं, तो क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे? सर अगर हमारे जो काम बहुत देर से होने वाला चीज है वो हम जल्दी कर सकते हैं अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, और जो भी स्ट्रेस है वो भी हम अगर रिड्यूस करेंगे तो जो काम देर से होगा वो जल्दी हो जाएगा। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है, हमारे इमोशंस कंट्रोल करना है। अगर हम इमोशंस कंट्रोल करते हैं, हाँ, तो उसके साथ साथ एक ध्यान में रखना है कि हम कोई, बहुत सारे लोग डिसीजन क्या करते हैं, हम इमोशन से लेते हैं, अरे मैं यार दिल से सोचता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिल से सोचते। हाँ, जरूरी है, यू मस्ट थिंक थ्रू योर हार्ट, बट फॉलो योर हार्ट, बट टेक योर ब्रेन विथ यू। क्या करना है, हमें हमारा ब्रेन भी साथ लेके चलना है। हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ओके, हमें हमारा ब्रेन भी साथ लेके चलना है। अगर हम हमारा ब्रेन अगर छोड़ देते, ब्रेन का यूज नहीं कर रहे, पूरा दिल से सोच रहे, तो हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, हो सकता है। बहुत बार हम किसी को, यानी इमोशनल होकर किसी को पैसे तो दे देते, किसी को हेल्प कर लेती है, फिर बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, बार बार फोन करके उसको परेशान हो जाते हैं हम, लेकिन हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पैसे भी नहीं मिलते, और वो बंदा दिखता भी नहीं है ना। ये होता है। कभी कभी बहुत से लोग, जब यंग लोग है, कुछ इमोशंस में आते हैं, प्यार में वो बहकर होकर शादी कर लेते हैं, फिर कहीं सपोर्ट्स नहीं मिलता, फिर स्पॉइल हो जाती है उनकी लाइफ। होता है। तो हम अपने हार्ट को तो फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दिमाग को भी साथ में लेके चलना है, ब्रेन को भी फॉलो करना है। तो हम ये सब कैसे करें, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, हम खुद को पहचानना चाहिए। सेल्फ अवेयर अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशन एंड इमोशनल ट्रिगर्स पॉइंट। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे इमोशंस पहचानने हैं, हम खुद की फीलिंग्स को पहचानना है कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। अंडरस्टैंड इमोशनल वीकनेस, हमारी इमोशनल वीकनेस को हमें समझना है कि इस वजह से मुझे ट्रिगर्स होते, मेरे इमोशनल ट्रिगर्स होता है, इस वजह से मैं गुस्सा आ जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, सैड हो जाता हूँ, इस वजह से। अगर ट्रिगर पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, आपके वीकनेस अगर समझ में आए, तो आप क्या करना चालू कर देंगे, तब आप उस वीकनेस पर काम करना चालू कर देंगे। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी वीकनेस क्या है, आप फ्लो फ्लो में चल रहे हैं, तो आपका पूरी जब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खुद के बारे में अवेयर होना है, खुद के ट्रिगर्स पॉइंट्स क्या, खुद के इमोशंस को समझना है। क्या करना पड़ेगा गौरव, सबसे पहले हमें उसमें ध्यान देना पड़ेगा अपने, हमें क्या कमी है, क्या है, उसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, उस पर समझना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। जब तक हम खुद को समझेंगे नहीं, खुद के इमोशंस को समझेंगे नहीं, खुद के फीलिंग्स को, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस पर सुधार नहीं ला सकते। देन हैंडलिंग इमोशंस कैसे करना, रिकॉग्नाइज तो कर लिया हमें ये इमोशंस है हमारे, हमें डर लगता है जल्दी किसी को देखकर, फिर उसको ओवरकम कर, अंडरस्टैंड हो गए हम, लेकिन फिर लेबलिंग करना है, हम क्या करना, लेबलिंग करना है कि मेरा ये इमोशंस आ जाता है ना, मैं क्या हो जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, मुझे सैड फील होता है, मुझे ये होता है। ओके, जो भी फीलिंग्स आपके होते हैं, उसको समझो, उसको लेबलिंग लेबलिंग करो कि ये राइट डाउन करो, अपने नोट्स कर लो, डायरी पर नोट करो कि मुझे ये मेरे ट्रिगर्स पॉइंट्स है, उसको समझो और उसको काम करने की जरूरत है ना। जब हम उस पर काम करेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेट करने के तरीके क्या क्या, मेडिटेशंस करो, योगा करो, है ना। अगर उसके लिए मेडिटेशंस इज द बेस्ट वे टू रेगुलेट योर इमोशंस। हम, जब हमें इमोशंस पता चल रहा, मुझे गुस्सा आता है, अगर मेडिटेशन करते, मुझे पता मेडिटेशन करते, उसकी वजह से हम अपना गुस्सा थोड़ा लेवल हम कम कर सकते हैं। और आपने एक देखा होगा, गुस्सा आता तो कितने देर के लिए रुकता है, कितने देर के लिए रुकता है गुस्सा, कोई बताएगा? जब आपको गुस्सा आता है तो कितनी देर तक रुकता है वो, क्या पूरे कंटिन्यू रहता है ना।
ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 5 मिनट गुस्सा रहेगा, 5 मिनट के बाद जाना ही है ना। सैड फीलिंग्स आती है, कुछ देर तक रुकती है, फिर चली जाती है ना। जो भी फीलिंग्स आती है जनरेट होती है, थोड़ी देर तक रहती है, चली जाती है। अगर जब आपको पता है फीलिंग्स अराइज हुई है तो कुछ देर के बाद जाने वाली है ना। कुछ आपको इमोशन जनरेट हुए हैं, आपके कुछ इमोशन जनरेट हुए हैं, जैसे गुस्सा आया है तो थोड़ी देर के बाद वो जाने ही वाला है। कुछ जेलसी हुई है, थोड़ी देर के बाद वो कम होने वाली है। कुछ देर के बाद अगर हमने उस पर एक्शन लिया, रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया तो हमें रिग्रेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम वेट कर लेते हैं ना, उससे अच्छा हम वेट कर लेते। कब तक भाई रुकेगा तू गैंगर, थोड़ा वेट कर लेते। जब तक तुम वेट करोगे थोड़ी देर बाद वो भी चला जाएगा। अगर हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं तो उसकी क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर और साइकोलॉजी पर होगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा कब तक भाई तू रुकेगा। क्योंकि हमें ये पता है उसका नेचर, कोई भी फीलिंग्स आती है तो कुछ देर तक रुकती है, फिर बाद में चली जाती है ना। तो हम अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, हमारे जो भी स्ट्रेस लेवल रहेगा या इमोशन पर हम कंट्रोल पा सकेंगे। फिर क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरे को समझते नहीं, हम खुद को समझते हैं यार। मेरे को वो समझता है ना, वो मुझे समझता नहीं, यही रह चलता है ना। हमारे ऑफिस में काम करते, वो यार समझ ही नहीं पा रहा मेरा जो प्रॉब्लम वो समझ ही नहीं पा रहा था, मेरे जो फ्रेंड समझ नहीं पा रहे, मेरे सर समझ नहीं पा रहे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एम्पैथी, अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर। हम दूसरे के इमोशंस को समझें। हम जब उनके इमोशन समझेंगे उसके प्लेस में जाकर तो क्या होगा, उसका पर्सपेक्टिव हमें समझ में आ जाएगा, है ना। आपका फ्रेंड्स अगर वो आपसे गुस्सा है ना, तो आपको भी गुस्सा आ रहा है। जब तक आप उसको इमोशंस को समझोगे नहीं, है ना, जब हम उसके पोजीशन में, उसके स्थिति में जाकर आप विचार नहीं करोगे, है ना, सोचोगे नहीं, तो आप उसको समझोगे नहीं, है ना। क्या होता है एम्पैथी, क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द एम्पैथी? यस शुभांगी, क्या होता है एम्पैथी, क्या है? एम्पैथी मीन्स इफ अगर सामने वाले पर्सन को क्या लग रहा है वो हम खुद महसूस कर सकते हैं, वो होता है एम्पैथी। है ना। अगर मुझे बताइए, अगर आपके सर, आपके जो बॉस है, सपोज आप इफ यू आर वर्किंग समवेयर और आपके पास आपके ऊपर गुस्सा हो गए किसी प्रोजेक्ट के लेकर, है ना, किसी प्रोजेक्ट के लेकर, प्रोजेक्ट से लेकर आपको गुस्सा हो गया, आपको गुस्सा आ गया, फिर आपको भी गुस्सा आया, और आप क्या करोगे, तुरंत रेजिग्नेशन लेटर देकर चले जाओगे या आप सोचोगे कि सर ने मुझे क्यों डांटा है ना। क्योंकि उसको भी स्ट्रेस होगा, है ना, उसको भी स्ट्रेस होगा, उनको भी स्ट्रेस होगा। और आप अगर उनके उस पर जाकर अगर सोचोगे कि उन्होंने मुझे इसलिए डांटा है कि उनको भी स्ट्रेस था, अगर आप इस लेवल पर जाकर अगर एम्पैथी शो करके अगर खुद को एनालाइज करते हो इमोशंस को, तो आप वो एक्शन नहीं लोगे। बहुत बार क्या होता कि हम गुस्से में आकर किसी ने हमके ऊपर अगर गुस्सा निकाल दिया तो हम भी तुरंत रिएक्ट करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है ना। एक कपल में डाइवोर्स हो गया, किसके लेकर, गुलाब जामुन को लेकर। एक कपल में डाइवोर्स हो गया, क्यों हो गया, कि गुलाब जामुन को लेकर। वो बोल रहे थे कि बच्चे का बर्थडे है तो उसमें क्या करेंगे, गुलाब जामुन रखेंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, हम बर्फी रखेंगे। और गुलाब जामुन, हाँ तुम्हें तो गुलाब जामुन पसंद है, तुम्हें तो बर्फी पसंद है, ऐसे करते करते एक दूसरे को इतने ये हो गए थे। फिर उसकी हिस्ट्री निकल गई, उसका भी हिस्ट्री निकल गया, और इतना हो गया वो ना, बर्थडे हुआ और वो अपने मायके चले गए। 6 महीने हो गए, 1 महीने का हो गया, वो आई नहीं। फिर डिवोर्स के लिए केस फाइल हो गया, है ना। तो छोटी चीजों को इतना बड़ा तक लेके बड़ा मिल जाता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता, कोई भी, इट इज अ स्मॉल एग्जांपल। तो हमें कहीं भी, हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम कोई भी, हमें कुछ क्यों बिहेव ऐसा कर रहा है, उसके प्लेस में जाकर सोचना है ना। उसके प्लेस में जाकर हमें सोचना है कि क्यों ऐसा रिएक्ट करना है। अगर हम वहां होते तो हमने क्या किया होता है ना। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा टाइम अगर उस पर जाने देंगे तो हमें समझ में आ जाता कि हमें थोड़ा सा ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये चीजें अगर हम फॉलो करते तो हमारा स्ट्रेस को हमें मैनेज करते। स्ट्रैटेजी क्या है, अभी थोड़ा सा रिकैप करते थे। क्या स्ट्रैटेजी इमोशन को मैनेज करने की, सेल्फ अवेयर। हम अपने इमोशन के ऊपर सेल्फ अवेयर होना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारा क्या क्या वीकनेस है।
फिर सेल्फ रेगुलाइजेशन करना है, उसको रेगुलाइजेशन करना है, उस पर काम करना है ना, उसमें क्या करना है, हमें काम करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको अगर कोई मोटिवेशन है ना, आपको एक मोटिवेशन है कि आपको बड़ा होकर एक खुद की कंपनी डालनी है। आपका क्या मोटिवेशन है, मोटिव क्या है कि आपका एक गोल है कि आपको क्या करना है, आपकी खुद की कंपनी डालनी है। तो आप छोटे मोटे चीजों को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। जो भी आपके रास्ते में कोई भी चीजें आती है तो क्या करोगे, आप इग्नोर करोगे, है करेक्ट, है ना। तो अगर हमें कुछ बड़ा मोटिवेशन है, कुछ हमें अगर लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। अगर हमारा कुछ गोल सेट नहीं है तो हम थोड़े छोटे छोटे चीज़ों में उलझे रहेंगे। हमारा राइट, है ना। अगर हमारा गोल नहीं जिंदगी में तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में उलझे रहते हैं। और हमारा गोल अगर फिक्स है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। एम्पैथी जो अभी आपने देखी है कि एम्पैथी शो करना है, समझना है। ओके, ये जो भी चीजें हम कर अभी समझ रहे उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जो एबिलिटी है अंडरस्टैंड, खुद की इमोशंस समझना और दूसरे के इमोशंस को समझना, और उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, अप्रोप्रिएटली एक्शंस लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। जब हम हमारी इमोशन समझते हैं, दूसरे को इमोशन समझते हैं, उसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा आज का सेशन है। थोड़ा हम आपसे कंक्लूजन पर आते हैं। इसमें कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूजन, इमोशनल मैनेजमेंट इज द स्किल दैट कैन बी डेवलप। इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, स्किल है, क्या है एक, इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, कोई जन्म से सीखकर नहीं आता है ना। इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, एक स्किल है, हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है, कैन बी डेवलप। ये क्या कीवेज क्या है, इमोशन मैनेजमेंट इज द क्रूशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। हमारा पर्सनल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्या है, इमोशंस मैनेजमेंट एक क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। मानते हो सब लोग, है क्या, ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, श्रद्धा, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है ये इमोशंस मैनेजमेंट करना। इमोशनल मैनेजमेंट ये अपने लिए खुद इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए, है ना। सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ द इमोशन मैनेजमेंट। सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या है इमोशनल मैनेजमेंट का, क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशंस मैनेजमेंट। खुद का इमोशन को मैनेज करना, समझना, ये फाउंडेशन है। और अब इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैन हेल्प टू मैनेज योर इमोशंस। अगर आप इमोशन सबको मैनेज कर पाते हो अपने, तो उसकी एक अच्छी तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपके इमोशंस को आप मैनेज कर पाओगे और अच्छे इमोशन स्टार्ट कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, आपके इमोशन कंट्रोल कर पाओगे। तो आपके पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की जो नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा। ओके, सो अभी वी कम टू द कंक्लूजन, हमारा सेशन यहाँ खत्म हो जाता है। तो कैन यू टेल अस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस सेशन। आपको इस सेशन से क्या समझ में आया। हेलो, सर हम इमोशंस को कैसे हैंडल कर सके और कैसे सिचुएशन में हम क्या रिएक्ट करेंगे जिससे हमारा जो भी काम है वो कैसे पूरा होगा, वो सब हम ये सेशन से मतलब सीखे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यस, और कौन बताएगा क्या समझ में आया इस सेशन से आपको। अपन मैनेज करते हैं तो अपन प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं, हम्म हेल्दी रह सकते हैं, और सब कुछ अपन अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं तो अपन अपना रिलेशनशिप भी प्रॉपर रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हम्म क्वालिटी का रिलेशन रहता है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स अपन मैनेज कर रहे हैं, अपने इमोशंस मैनेज कर रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप एंड प्रॉपर काम भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस।
आदित्य, क्या क्या आपको क्या उसमें व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस सेशन? बेसिकली सर, जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं, तो कुछ पास्ट को लेकर और कुछ मतलब आगे वाले मतलब कंपनी में कुछ हो गया, तो वो अपने ऊपर रहता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, बस हमें प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए उसके लिए। तो जैसे आपने बताया कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपने बताया कि उसका यूज करके उसको रिड्यूस करवा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है कि जब हम कोई या हम कुछ काम करते रहे, हमें स्ट्रेस आ गया या हमारे सर ने कुछ हमें बोल दिया, तो ऐसा लगता है, एंगरनेस आता है या सैड लगता है, तो हम उसको रिड्यूस करना कम कर सकते हैं इसका यूज करके। करेक्ट, करेक्ट, यस यस। गौरव, क्या पता चला आपको सेशन से? जैसे हम कभी एंग्री होते हैं, कभी सैडनेस होता है, तो मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे वर्क के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। हमें उसको मैनेज करना है, और उससे क्या होगा, हमारी रिलेशनशिप मेंटेन होंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जैसे अपने एम्पैथी की बात की, एम्पैथी की बात की है सर, किसी हमें हमें को दूसरों की जगह पे जाके भी हमें सोचना पड़ता है कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। यस यस, एब्सोल्युटली राइट, यस, वेरी गुड, यस। और किसी को कुछ? एक कर लेते हैं फोटोस, ओके। So, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. So, so let me tell you, thank you so much for joining the sessions. I hope you all understood whatever I shared with you, and thank you so much once again. Okay, bye. Take care. Thank you so much, sir. Bye, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.